Good morning, dear students. Today we will study about the next fundamental right, that is right to freedom of religion. Right to freedom of religion. This is the fundamental right which grants you freedom to enjoy any religion. You are free to adopt any religion, be it you are Hindu, Muslim, Christian, Sikh, Jain, Parsi, Buddhist, or of any religion. You have every right to profess any religion and the freedom to manage religious affairs, freedom to have religious instructions in certain institutions. Means you may be of different religion, you have every right to enjoy the religion which you like, which you want to profess, and even you have right to profess, propagate, or preach religion of your own, but not at the cost of other religions. Means you should not defame other religions, you should not speak ill of any other religion, but you can enjoy your own freedom of religion, whichever religion you want to adopt. And under this right you have फ्रीडम टू प्रीच। मीन्स आप अपने रिलीजन को प्रीच कर सकते हो, आप अपने रिलीजन को अपना सकते हो, लोगों को भी उसके लिए गाइड कर सकते हो कि ये रिलीजन क्यों अच्छा है, या आप अपने रिलीजन के त्यौहार जो हैं वो मना सकते हो। यू कैन इन्जॉय ऑल द फेस्टिवल्स एंड इवन इंडिया इज़ सच अ कंट्री विद डाइवर्स रिलीजन्स दैट हेयर all the religions they celebrate all the festivals of other religions. Like if we are of a, let it be of any religion, but we always celebrate Diwali, Dishera, Christmas, Eid, and the religions they keep us unite, be it we are of different languages, different colors, and we belong to different traditions, but still the crux of this religion is that we all belong to one race. And under this फ्रीडम ऑफ रिलीजन यू हैव फ्रीडम टू मैनेज योर रिलीजियस अफेयर्स। आप लंगर लगाते हैं, आप गुरुद्वारे में अखंड पाठ करवाते हो, आप जगराता करवाते हो। इट डिपेंड्स कि आप किस रिलीजन को बिलोंग करते हो, आप उसको कैसे प्रोपोगेट करते हो। लेकिन ये सब कुछ किसी और रिलीजन को नीचा दिखाकर नहीं करना है, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर पीपल। To sum up right to freedom of religion, we must know, according to the Constitution, all religions are equal before the state and no religion shall be given preference over the other. Citizens are free to preach, practice, propagate any religion of their choice. So religious communities they can set up charitable institutions of their own. चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस वो अपनी खोल सकते हैं जहाँ पे वो लोगों का फ्री इलाज कर सकते हैं, या सम स्कूल्स आर देयर विच आर बेस्ड ऑन पर्टिकुलर रिलीजन, बट they have freedom to do this. Government do not do any funding for these institutions. Then activities in such institutions which are not religious, अगर कोई हॉस्पिटल खोला है जैसे किसी भी नाम पे, सपोज आई टेक द नेम पाई दया सिंह चैरिटेबल हॉस्पिटल, वो चैरिटेबल हॉस्पिटल है, पाई दया सिंह से पता लग रहा है सिख कम्युनिटी के लोगों ने उसको सेटअप किया है, लेकिन वहाँ पे कोई रिलीजियस एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होती, बट जितने भी लॉज हैं दे आर अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। No person shall be compelled to pay taxes for the promotion of particular religion. रिलीजन के नाम पे आप पे किसी भी तरह का कोई टैक्स इम्पोज नहीं किया जा सकता। एंड अ स्टेट रन इंस्टीट्यूशन कैन नॉट इम्पार्ट एजुकेशन दैट इज़ प्रो रिलीजन। स्टेट अगर कोई इंस्टीट्यूशन चलाती है तो वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ध्यान में रखते हुए नहीं चला सकती। सपोज आई टेक एग्जाम्पल हेयर गुरु नानक पब्लिक स्कूल, or some other example, you have Sacred Heart Convent School. They are of different
कम्युनिटीज़, रिलीजियस कम्युनिटीज़ से ही पता लग रहा है हमें। एक सिखिज़म का स्कूल है, सिख कम्युनिटी का, एक है जो है वो क्रिश्चियन मिशनरीज़ का स्कूल है। बट इट डजंट मीन कि वहाँ पे वो बाकी और रिलीजन्स के बच्चों को एडमिशन नहीं देते या बाकी रिलीजन के बच्चे नहीं पढ़ सकते। हाँ, बिकॉज दैट इज़ अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। वहाँ पे दे कैन इम्पार्ट एजुकेशन टू ऑल, बट वो प्रेयर में कर सकते हैं कि जैसे कॉन्वेंट स्कूल है वहाँ पे प्रेयर सारी क्रिश्चियन बेस्ड होती है। नो डाउट दे कैन परफॉर्म द प्रेयर्स फॉर द अदर रिलीजन्स ऑल्सो, लाइक एक मूल मंत्र हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ देयर थिंग्स और एक्टिविटीज़ दे इन्वॉल्व सम रिलीजियस टाइप ऑफ थिंग्स। सो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में जो एक सम अप हमारे सामने चीज़ आती है वो ये है कि गवर्नमेंट किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को फंडिंग नहीं कर सकती, प्रमोट नहीं कर सकती। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस अपने आप फंड क्रिएट करके ही रन होती हैं। लेकिन अगर कोई इंस्टीट्यूशन स्टेट ने सेटअप किया है तो वहाँ पे वो किसी तरह की रिलीजियस एक्टिविटी परटेनिंग टू सम पर्टिकुलर रिलीजन वो वहाँ पे उसको इम्पार्ट नहीं कर सकते। इवन जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे रिलीजियस पर्टिकुलर रिलीजन को सेलिब्रेट भी नहीं किया जा सकता। वहाँ पे उस दिन हॉलीडे डिक्लेयर होता है। सपोज दिवाली है, दिवाली की छुट्टियां होंगी आपको, दिवाली आप अपने घर पे मनाओगे। ये नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफिस में दिवाली मनाई जाएगी। वहाँ पे हाँ ठीक है, अपने हिसाब से लोग थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर सकते हैं। ऐसे जिस दिन क्रिसमस आता है उस दिन भी कुछ डेकोरेशन हो जाए, लेकिन दैट विल नॉट हैपन इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में हर धर्म को सेलिब्रेट किया जा सकता है, और कोई अगर वो एक पर्टिकुलर रिलीजन के बेस पे सेटअप हुई है तो ये भी हो सकता है वो किसी और रिलीजन को ना वहाँ पे सेलिब्रेट करते हों। सो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपको पूरा राइट देता है कि आप अपना रिलीजन सेलिब्रेट करो, आप अपना रिलीजन इंजॉय करो, फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करो, लेकिन आप किसी दूसरे रिलीजन को डिफेम करके नहीं कर सकते। नेक्स्ट राइट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। Under this right, there is a prohibition of forced labor and prohibition of employment of children in hazardous jobs. Right against exploitation says the abolition of trafficking in human beings and begar, means forced labor will not be there and smuggling of human beings will not be there. उनको ज़बरदस्ती अपना स्लेव बना के आप नहीं रख सकते। देन अबॉलिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 years इन डेंजरस जॉब्स लाइक फैक्ट्रीज एंड माइंस। फैक्ट्रीज और माइंस में 14 years से कम एज के बच्चों को जॉब पे एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा। बेगार practiced in the past by landlords. Landlords used to practice begar. Even you might have studied this thing in your history if you have opted for history. Otherwise, in history till 10th, you might have come across with this word begar. It means forced labor. And forced labor has been declared a crime and is punishable by law. Trafficking in humans for the purpose of slave trade or prostitution is also prohibited by law. Thank you, and we will continue with the rest part of the chapter in the next lecture.